हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज हम लोग मिले हैं सीए इंटरमीडिएट या आईपीसी से लेवल की जो नवंबर 2020 एग्जाम होने वाली है, उसमें जो जीएसटी से संबंधित अमेंडमेंट्स है उसमें फर्दर डिस्कशंस करने के लिए। सो इन द अर्लियर इन द पार्ट वन ऑफ द वीडियो we have in the part one of the amendment videos we have already seen amendments related to levy and collection of GST, exemptions from GST, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, ई वे बिल एंड रजिस्ट्रेशन। इससे संबंधित जो अमेंडमेंट्स है ऑलरेडी ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। अब ये वीडियो में आज हम लोग अभी पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न्स, ये दो चैप्टर से संबंधित अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित जो अमेंडमेंट्स है उसको मैं सेपरेटली अपलोड करूंगा। सो अमेंडमेंट के नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई होप ऑलरेडी आपने देख करके डाउनलोड कर लिया है। As you know that amendments जो applicable है, they cover all the changes brought through notifications and circulars since 1st November 2019 to 30th April 2020। इस पीरियड में जो notifications and circulars applicable हुए थे, तो उसके थ्रू जो amendments हुए हैं वो आपके सिलेबस में कवर्ड है for November 2020 एग्जाम्स। ओके, सो वी विल बी सीइंग ऑल दोज अमेंडमेंट्स वन बाय वन। इसके अलावा इवन फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 जो है उसके कुछ प्रोविजंस इफेक्टिव हुए 1 जनवरी 2020 से, जो आपके नवंबर एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हुए। तो हम लोग एक एक करके वो सभी अमेंडमेंट्स देखते हैं। सो राइट नाउ let us start with this chapter payment of tax. What are the amendments related to payment of tax? Let us see. So first amendment is friends, एक न्यू रूल 86A इंसर्ट हुआ है। रूल नंबर 86A, okay, from 26th December 2019, which talks about, which gives the power to the commissioner or to a person authorized by such commissioner to disallow the utilization of ITC balance to a certain extent by the taxpayer. Okay, he can stop the person from utilizing the ITC balance if he feels that such person has availed the ITC fraudulently or he should not be eligible to avail the ITC। तो हम लोग देखते हैं कौन से सर्कमस्टेंसेस में ये वाला जो सिनेरियो है वो एप्लीकेबल है, ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है। सो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, देखिए आप, commissioner or an officer authorized by him on this behalf, not below the rank of an assistant commissioner, having reasons to believe that the ITC available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible, then what he can do if he has reasons to believe that it is so under certain circumstances, then he may, for reasons to be recorded in writing, he may not allow the debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of any unutilized amount। तो वो उतना अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ब्लॉक करवा सकता है। बेसिकली he can say that such credit will not be eligible for making payments or it will not be eligible for claiming refund from that। So what are those scenarios? तो उन्होंने यहाँ पर पूरे चारों केसेस कवर किया है। फर्स्ट, ITC has been availed on the basis of, on the strength of tax invoices or debit notes or any other document which has been issued by a registered person who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained। मतलब कि डमी इनवॉइस के बेसिस पे आपने क्रेडिट ले लिया है, तो जो पर्सन इनवॉइस इशू किया है या तो वो पर्सन ही एग्जिस्टेंट नहीं है रियलिटी में, या तो वो जो एड्रेस दिया है उसने अपने रजिस्ट्रेशन में, वो एड्रेस से वो अपना वो प्लेस से अपना वो बिजनेस करता ही नहीं है। or if the invoices have been received without receipt of goods or services or both। Again, मतलब कि there is no actual transfer of goods or services, you have only taken invoice from some such person and taking the credit of that, तो वो credit disallow करने का पूरा right कमिश्नर के पास में है। Then, or if the ITC has been availed from on the basis of such invoices or documents, the tax charged in respect of which has not been paid to the government। तो आपने जिस भी पर्सन को टैक्स पे किया है उसने गवर्नमेंट को अगर टैक्स पे नहीं किया तो आपका आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके, ये मैचिंग कंसेप्ट, जो मैचिंग मैकेनिज्म जो है वो जब भी एप्लीकेबल होगा तो लोग पकड़े जाएंगे कि एज इन उनके सप्लायर ने अगर पेमेंट नहीं किया तो वो रेसिपिएंट का क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। ओके, दिस इज जस्ट लाइक इन इनकम टैक्स। अगर टीडीएस जो है डिडक्टर ने डिपॉजिट नहीं किया तो जो डिडक्टी होता है, जो पेई होता है,
उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। इट इज सिमिलर टू दैट। सो अगर अगर ये पता चला कि सप्लायर ने या जो भी पर्सन गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने के लिए लायबल था, उसने गवर्नमेंट को वो टैक्स डिपॉजिट किया ही नहीं, पे किया ही नहीं, तो जिस भी पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट है, वो फिर भी उसका क्रेडिट ले नहीं सकता है। ले भी लिया तो अब उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है, बिकॉज प्रोविजनल बेसिस पे क्रेडिट ले सकता है, लेकिन अब उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। देन फ्रेंड्स, the registered person availing the ITC has been found non-existent। वो पर्सन जो ITC ले रहा है वो पर्सन ही एक्चुअल में है नहीं, कोई डमी बोगस कंपनी बनी हुई है या ऐसा कुछ केस है। और not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained, या वो पर्टिकुलर प्लेस से बिजनेस नहीं कर रहा है, ओके, जो एड्रेस उसने अपने रजिस्ट्रेशन में दिया है, तो इन दैट केस ऑल्सो द क्रेडिट विल बी डिसअलाउड। Or the registered person availing any ITC is not in possession of a tax invoice or debit note or any other document prescribed under Rule 36. Okay, ये जो person है, he is not in possession of that document. तो ये एक mandatory condition है, rule number 36 में लिखा ही है कि you should be in possession of that document. Okay, section 16 में लिखा हुआ है CGST Act के कि the person should be in possession of that document, only then he will be eligible for claiming ITC. तो अगर वो डॉक्यूमेंट ही उसके पास में नहीं है तो वो क्रेडिट नहीं ले सकता है। सो ले भी लिया तो वो क्रेडिट को अब वो यूटिलाइज नहीं कर सकता है। सो सच पर्सन, सच कमिश्नर कैन डिसअलाउ दैट क्रेडिट टू बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बट फर्दर अगर उसको लगता है बाद में, अगर से वो टैक्स पेयर ने प्रूव कर दिया कि नहीं, द कंडीशंस आर एक्चुअली सेटिस्फाइड, देयर इज नो रीजन फॉर डिसअलाउइंग द क्रेडिट, या उसने उसको ठीक कर दिया, सो जैसे डॉक्यूमेंट पहले अवेलेबल नहीं थी अब डॉक्यूमेंट बता दिया, या ऐसा कुछ कंडीशन को रेक्टिफाई कर लिया बेसिकली, so in that case, if the commissioner is satisfied that the conditions for disallowing no longer exist, then he may allow the payment of tax from the electronic credit ledger to that extent. Okay, फिर उसने जो डिसअलाउ किया था उसको वापस से अलाउ कर सकता है। एंड ये जो रेस्ट्रिक्शन कमिश्नर लगाता है, डिसअलाउ करता है, it shall cease to have effect after the expiry of a period of 1 year from the date of imposing such restriction. तो दिस पर्टिकुलर प्रोविजन कम्स विद लिमिटेशन। ये जो पावर है कमिश्नर का, ये पावर में एक पीरियड का लिमिटेशन है कि 1 ईयर तक के ही ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड रहेगा। वो 1 ईयर के अंदर या तो वो पर्सन के अगेंस्ट में कमिश्नर अपना जो केस है वो उसको आगे बढ़ाएगा एंड ये प्रूव हो जाएगा कि वो गड़बड़ है ना। अभी तो जो रीजंस टू बिलीव है वो तब तक के अगर प्रूव हो गए तो क्रेडिट ही वैसे ही रिवर्स होने वाला है, और या तो फिर वो 1 ईयर के अंदर में अगर नहीं कुछ प्रूव हुआ या कुछ केस आगे नहीं बढ़ा, so then the restriction will get removed and the person can then actually utilize that much amount of credit जो पहले डिसअलाउ हुआ था। So this is the new rule 86A inserted from December 2019 in the CGST rules। इसके अलावा अब ये एक बहुत यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुई, अमेंडमेंट रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट हेड टू अनदर अकाउंट हेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सो बहुत सारे जो जीएसटी में टैक्स पेयर्स है, पर्सन से, रजिस्टर्ड पर्सन से, उन लोगों को एक दिक्कत हो रही थी कि अगर उन्होंने गलती से कैश लेजर में एक गलत मेजर हेड या माइनर हेड में पैसा जमा कर दिया। आई होप यू नो दैट देर आर these 4-5 major heads like CGST, SGST, IGST, okay, UTGST, SGST oblique UTGST बोल सकते हैं, एंड कंपनसेशन सेस। एंड इसके अंदर में माइनर हेड्स हैं टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एंड अदर्स। तो आपने करेक्ट मेजर एंड माइनर हेड के कॉम्बिनेशन में ही पैसा जमा करना चाहिए था। अभी तक के प्रोविजन ऐसा था। अगर आपने गलती से रॉन्ग मेजर माइनर हेड में पैसा जमा कर दिया, मतलब मान लो मैंने सीजीएसटी टैक्स में पैसा जमा कर दिया जबकि मेरी आईजीएसटी की लायबिलिटी थी, so I was not allowed to use that to pay the IGST liability। इसका मुझे अलग से रिफंड मांगना पड़ता था और ये मुझे स्पेशली पे करना पड़ता था डबल से। सो ऐसा नहीं कि मेरा डबल पेमेंट हो रहा था, मुझे उसका रिफंड मिल जाता था, बट देयर वाज अ टाइम गैप। ओके, तो उतने समय तक कि मेरा पैसा ब्लॉक हो जाता था। जबकि एक कॉमन मैन तो ये समझता है कि ये सब गवर्नमेंट के ही तो अलग अलग अकाउंट्स बने हुए हैं, तो एक जगह डाला तो इट शुड बी अलाउड टू बी ट्रांसफर टू द अदर हेड अगर एक्चुअल में लाइबिलिटी दूसरे हेड की है तो। So ultimately it was allowed। now आप देखिए 1 जनवरी 2020 से ये जो फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 है उसका अमेंडमेंट सेक्शन 49 में जो था वो एप्लीकेबल हो चुका है। एंड उसके बाद में 21 अप्रैल 2020 से उन्होंने उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है वो रूल्स में बता दिया।
कौन सा फॉर्म भर करके वो पर्सन अपना एक हेड में जमा किया हुआ पैसा दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकता है। सो 1 जनवरी 2020 से जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ उसमें ये लिखा हुआ है कि अ पर्सन मे ट्रांसफर ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल any amount of tax, interest, penalty, fee, or any other amount available in the electronic cash ledger to the electronic cash ledger for any other head. Okay. As per the form, manner, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. एंड जहां से आपने पैसा निकाला वहां से रिफंड हो गया ऐसा मानेंगे, और जहां पैसा डाला वहां पर डिपॉजिट हो गया ऐसा मानेंगे। इट शैल बी डीम्ड टू बी डिपॉजिटेड। ओके, ऐसा मानेंगे हम लोग दूसरे पर्टिकुलर मेजर एंड माइनर हेड में। पहले तो एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड में भी आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। मतलब मान लो आपने टैक्स के हेड में ज्यादा पैसा डाल दिया लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन का आपको इंटरेस्ट पे करना था, तो इट वाज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर। बट अब आपने टैक्स सीजीएसटी टैक्स में पैसा डाल दिया, सो यू कैन फिल दिस फॉर्म जीएसटी PMT09 जो कि 21 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव हुआ। एंड ये फॉर्म के थ्रू अब आप अपना जो अमाउंट है ट्रांसफर कर सकते हो अंडर अदर मेजर और माइनर है। तो जो नेकिन करके जो एकेडमी है, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, तो नेकिन ने इसके रिस्पेक्ट में पूरा प्रोसीजर समझाया। ओके, पूरा इसका बैकग्राउंड बताया उनके उस समय के वीकली अपडेट में। तो ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पूरा पेज, पूरा पैराग्राफ आपने रखा है। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द रीजन, जो मैंने आपको समझाया कि पहले अगर इनएडवर्टेंटली या गलती से टैक्स पेयर ने रॉन्ग हेड में अमाउंट जमा कर दिया, so it could not be used to discharge the liabilities due in the other head. So ऐसे केस में जहां पर रॉन्ग हेड में आपने फाइल किया वहां से आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करके आपको रिफंड क्लेम करना पड़ता था। ओके, एंड रिफंड का जो प्रोसेस है अप टू द डिसबर्समेंट टाइम, उसमें उतने समय तक आपका पैसा ब्लॉक होता था। बट तब तक आपकी जो दूसरी हेड में लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। सो दैट यूज टू लीड टू ब्लॉकेज ऑफ फंड्स, ओके, फॉर द जेन्युइन टैक्स पेयर्स। तो अब जीएसटी PMT09 के थ्रू अब आप इंट्रा हेड या इंटर हेड ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आप मेजर हेड टू मेजर हेड से सीजीएसटी से एसजीएसटी में भी ट्रांसफर कर सकते हो, एंड मेजर हेड सॉरी माइनर हेड टू अदर माइनर हेड भी कर सकते हो। लाइक आप सीजीएसटी टैक्स से आप सीजीएसटी इंटरेस्ट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। सो नाउ दैट इज गुड। अब ये जो प्रोविजन आ गई ये एक फैसिलिटी है टैक्स पेयर्स के लिए जो कि मच नीडेड थी। इट विल प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द टैक्स पेयर्स टू मेक द ट्रांसफर्स, ओके, इन केस दे डिपॉजिट द अमाउंट इन सम रॉन्ग हेड। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली इतना हैरेस नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर रेडी टू पे टैक्स, उनका ही पैसा गवर्नमेंट के पास में जमा है, बस हेड गलत था। सो गवर्नमेंट ने अब इंटरनल अपने ट्रांसफर का अरेंजमेंट बना लिया कि सपोज अगर सीजीएसटी से मैं पैसा एसजीएसटी में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट भी इंटरनली सीजीएसटी अकाउंट से एसजीएसटी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लेगी। सो इट बिकम्स इजी फॉर एवरीबडी। तो उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कहाँ पर जाना होगा लॉगिन करने के बाद में। फाइल जीएसटी PMT09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। ARN is generated on the successful filing of this form GST PMT09. SMS and email are sent to the taxpayer on his mobile and email ID, and cash ledger will get updated. उसके बाद में आप जो फॉर्म आपने फाइल किया था उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सो ये बेसिकली एक नया फॉर्म है जिसके थ्रू आप अब ये फंक्शन बहुत आसानी से कर सकते हो, ट्रांसफरिंग द अमाउंट फ्रॉम वन मेजर और माइनर हेड टू दी। ओके, अब अगर ऐसा ट्रांसफर किया तो सीजीएसटी एक्ट में और आईजीएसटी एक्ट में एंड करस्पॉन्डिंगली इवन जो एसजीएसटी एक्ट है उसमें भी ये प्रोविजंस इंसर्ट हुए जिसमें क्लियरली बोला गया, ये आप ये सिर्फ टेबल पढ़ सकते हैं कि अगर सीजीएसटी से एसजीएसटी में पैसा ट्रांसफर किया तो एट द गवर्नमेंट लेवल इन द बैक एंड अमाउंट जो है सीजीएसटी अकाउंट से एसजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, आईजीएसटी का अगर आपने एसजीएसटी में ट्रांसफर करवाया पैसा तो एट द गवर्नमेंट लेवल भी वो पैसा आईजीएसटी से एसजीएसटी में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सिंपल। तो बेसिकली बेसिकली ये जो है अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट अब बैक एंड पे ट्रांसफर कर लेगी, तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि आप फ्रंट एंड पे सिर्फ एक क्लिक से आप अपना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, जिस तरीके से आपके अगर मान लो एक ही बैंक में दो अकाउंट्स हैं आप ही के, तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा बड़े आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, डज नॉट रिक्वायर कि भाई पहले एक जगह जाकर के पैसा विड्रॉ करो फिर दूसरी जगह डिपॉजिट करो। इट इज अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम एंड लेबर। तो उन्होंने अब उसको ठीक किया है। सो दैट इज अ वेलकम चेंज। ओके,
So these sections were introduced in the act from 1st January, but they became effective from 21st April 2020. ओके, क्योंकि जो फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 है वो 21st अप्रैल 2020 से नोटिफाई हुआ है। सो ये एक प्रोविजन को आप ध्यान रख सकते हो। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपने पहले किया होगा पहले आपकी बुक में जो क्वेश्चंस थे कि क्या हम लोग एक मेजर हेड में डिपॉजिटेड अमाउंट को दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं क्या, तो बुक में जो आपने क्वेश्चंस किया होगा उसके आंसर्स थे नहीं कर सकते, बट नाउ आफ्टर दिस अमेंडमेंट यस आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी अंडर अदर हेड। देन पेमेंट से संबंधित एक लास्ट अमेंडमेंट आया कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कुछ पेमेंट किया और वो पेमेंट बाद में आपको पता चला कि आपने एक्सेसिव पे कर दिया है या रॉन्गली पे कर दिया है, जिसका आपने फिर रिफंड फाइल क्लेम फाइल किया था, और अगर आपका वो रिफंड एडमिसिबल रहा, अप्रूव हो गया, सो क्या होगा कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करके जो आपका पैसा गवर्नमेंट के पास गया था, अब उसका रिफंड भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट के रूप में आएगा। सो दैट विल नॉट बी रिफंडेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ कैश, okay, it will be refunded to you in the form of credit itself. Then that credit can be further utilized for the purpose of any other payment. So सिंपल सा एक नया सब रूल इंसर्ट हुआ अंडर द रूल 86 with effect from 23rd March 2020. So you can understand that. सो दीज आर द चेंजेस। उसके अलावा ये एक टेबल भी मैंने आप लोगों को नोट्स में दिया हुआ है कि 3 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आया था जिसके थ्रू उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को लोअर किया था। ऑब्वियसली जो ड्यू डेट्स थी वो भी एक्सटेंड हुई है, रिटर्न फाइलिंग की जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स थी, तो उसकी ड्यू डेट्स को उन्होंने न्यू ड्यू डेट्स उन्होंने प्रिस्क्राइब किया और ये बताया कि ये ड्यू डेट तक के अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके बाद भी इसमें कुछ और चेंजेस भी आए हैं, उसके बाद जुलाई में भी चेंजेस आए एंड बाद में भी आते ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन पूरी तरह खुली नहीं है। सो इंटरेस्ट रेट में भी कुछ कंसेशन भी दिया गया है। सो एज यू कैन सी कि फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट नो इंटरेस्ट, देन आफ्टर दैट 9% एंड सो ऑन। तो अब ये लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, आई मीन आपको एग्जाम में ये एग्जैक्टली कौन से मंथ की क्या ड्यू डेट है और कितना इंटरेस्ट लगेगा ये नहीं पूछने वाले हैं। आप जो इंटरेस्ट का जो जनरल कंसेप्ट है, जो जनरल आपको सेक्शन 50 में जो प्रिंसिपल दिया हुआ है उसको ध्यान रख सकते हैं। दिस इज स्पेसिफिक provision which has been brought into force for those specific months through a specific notification. So this kind of notifications are not part of your syllabus. Okay, you can just go through it for your knowledge purposes, एंड आप आगे जब आर्टिकलशिप का इंटरव्यू वगैरह देंगे आपके एग्जाम्स के बाद में, तो यू विल ऑल्सो हैव टू गेट अपडेटेड विद द फर्दर नोटिफिकेशंस। ओके, जो ड्यू डेट से संबंधित बाद में भी और नोटिफिकेशंस आई, इसके बाद के मंथ्स में भी आई, तो यू नीड टू गेट फर्दर अपडेटेड। और इवन जो आईसीआई का जो अपडेट आया है विद रिस्पेक्ट टू नवंबर 2020 एग्जाम, उसमें जो स्टैगर्ड ड्यू डेट्स हैं, ओके, लेस देन 5 करोड़ वाले जो टर्नओवर वाले जो पर्सन हैं, उनके लिए अब स्टेट वाइज ओके दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया। कुछ स्टेट्स के लिए एक ड्यू डेट रखी है, दूसरे स्टेट्स के दूसरी ड्यू डेट रखी है। तो ये स्टैगर्ड ड्यू डेट्स का भी कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, सो यू नीड नॉट बॉदर अबाउट दैट एट दिस लेवल। सो फॉर द एग्जाम पर्पसेस, ओके, इसको आप नॉलेज पर्पस के लिए आप डेफिनेटली आप इसको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ये नोट्स के स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दिया था कि देयर आर फर्दर चेंजेस मेड आफ्टर 30 अप्रैल, बट दे हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस नोट्स because for the November exam only changes made up to 30th April are to be seen, otherwise confusion और बढ़ेगा। और जो रिटर्न के डेट्स वगैरह के जो चेंजेस है वो टेक्निकली आपके सिलेबस में है नहीं, आपको पूछेंगे नहीं। सो रिटर्न्स चैप्टर में भी कुछ चेंजेस इफेक्टिव हुए, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो वी कैन गो थ्रू देम एंड आईटीसी चैप्टर के जो चेंजेस है वो मैं अलग से आपको सेशन रिकॉर्ड करके उसका अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो आपके पूरे अमेंडमेंट्स उसमें कवर हो जाएंगे। रिटर्न्स चैप्टर में बहुत छोटी छोटी चेंजेस है हियर एंड देयर। सो एक दिया हुआ है कि जो एनुअल रिटर्न है, सेक्शन 44 वाला जो एनुअल रिटर्न है, सो कमिश्नर को पावर दे दिया कि कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न। ओके, 1 जनवरी से ये कमिश्नर को पावर मिल चुका है। ओके, और अगर कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ने अगर नोटिफाई किया, सो इट विल बी डीम टू बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। ओके, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है, ये जो दोनों जो प्रोविजन से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों जो लॉ के पार्ट से ये कॉन्ग्रुएंट एक साथ चलते हैं। ठीक है,
हारमोनियस से। देन फर्दर आपको एक प्रोविजन है, 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन आई, every registered person whose aggregate turnover during the financial year 18-19 exceeds rupees 5 crore shall get his accounts audited as specified under section 35(5), and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement in form GSTR 9C uh, for the financial year 18-19। तो जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसी को अकाउंट्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है फॉर द ईयर 18-19 एज वेल। Okay, and he can furnish these audited account statements and reconciliation statement through the common portal. All right, so ये एक amendment है minor सा। Then 17-18, अब ये amendments I don't think आपको पूछने वाले हैं, कुछ specific जो changes है extensions है। तो GSTR 9A जो है for the period 2017-18 and 18-19 for composition scheme taxpayers, okay, if filed to be filed before the due date। ओके अगर फाइल किया तो ड्यू डेट के पहले फाइल कर दो, क्योंकि what has happened that the notification number 47 has made it optional to furnish the annual return itself, okay, for financial year 17-18 and 18-19 for such persons जिनका turnover 2 crore से ज्यादा नहीं है। So it is clarified that even under composition scheme they may at their option they may file GSTR 9A, it is no more mandatory, okay, for those 2 years particularly। So अगर फाइल किया है तो उन्होंने ड्यू डेट के पहले फाइल कर देना चाहिए। Okay, after the due date, the common portal itself shall not permit the filing of the furnishing of GSTR 9A by such composition scheme taxpayers। Then annual return की जो ड्यू डेट है फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 की, तो 17-18 की फाइनली ड्यू डेट्स एक्सटेंड होते फाइनली फरवरी 2020 तक की बढ़ी, एंड अलग अलग स्टेट्स के लिए 3 फरवरी 5 फरवरी एंड 7 फरवरी को वो ड्यू डेट फाइनल हुई। एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर तक एक्सटेंड हुई, बट देन as I told you these amendments are not applicable, this will not be asked in your exams, जो ड्यू डेट्स के एक्सटेंशन वगैरह है, बट यू शुड नो अब ये 30 सितंबर की डेट फर्दर एक्सटेंड या तो हो चुकी होगी या तो हो जाएगी। ओके, इफ यू एक्चुअली सी द लेटर नोटिफिकेशंस इशूड आफ्टर 30th अप्रैल, तो बिकॉज इस साल आपको सभी को पता है कि कोविड के कारण ये जो ड्यू डेट है ये काफी इम्प्रैक्टिकल है, सो इट माइट बी फर्दर एक्सटेंडेड। ओके, इट माइट बी फर्दर एक्सटेंडेड। खैर, ये कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल ईयर 18-19, मतलब ये ईयर एंड हो चुका था 31 मार्च 2019 को, जिसका रिटर्न as per the act was supposed to be filed up to 31st of December 2019, तो वो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुके अप टिल 30 सितंबर 2020। सो उसके बाद में भी 30 अप्रैल के बाद और फर्दर एक्सटेंड हुई है कि नहीं, तो वो आप एक्चुअल में नोटिफिकेशंस के थ्रू डाउनलोड करके देख सकते हैं उसके एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। देन लेट फी वेव की गई, अगेन आई डोंट थिंक दिस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस प्रोविजंस। अगर एक विंडो दिया गया कि अगर 19 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में अगर जो पर्सन्स ने अपना जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया था जुलाई 2017 से नवंबर 19 का, तो उन्होंने अगर इस बीच में फाइल कर दिया तो उनकी लेट फी वेव कर दी जाएगी। ओके, सिमिलरली जो पर्सन ने कंपोजिशन स्पेशल कंपोजिशन स्कीम नोटिफिकेशन 2/2019 को ऑप्ट किया था, सो उन लोगों को जीएसटीआर 1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। ओके, फॉर दैट पीरियड फॉर द ईयर 1920। ओके, नोटिफिकेशन 2/2019 आपको पता है विच टॉक्स अबाउट 6% कंसेशनल रेट, राइट। सो ये स्पेसिफिक चेंजेस, और फिर कोविड 19 के कारण उस समय 3 अप्रैल को, तब तो कोविड के बहुत इनिशियल स्टेजेस थे इंडिया में, सो एज यू नो दिस वाज द टाइम इन द फर्स्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन 1.0 जो उस समय अनाउंस हुआ था, तो उस समय गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलैक्सेशंस अनाउंस किए थे। 3 अप्रैल 2020 को उन्होंने एक सर्कुलर भी इशू किया और बहुत सारे नोटिफिकेशन उस दिन इशू किए थे, जिसके थ्रू उन्होंने वेरियस ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया, उन्होंने इंटरेस्ट को माफ किया, ओके, पर्टिकुलर डेट तक अगर डिपॉजिट कर देते हैं तो वो सब यहाँ पर ब्रीफ में मैंने आपको दिया है जस्ट फॉर नॉलेज पर्पसेस। आपकी आईसीआई के स्टैट्यूटरी अपडेट में उन्होंने ये सब चीजें कवर नहीं किया है, दैट मीन्स दैट दिस विल नॉट बी आस्क्ड फॉर द एग्जाम पर्पसेस, सो यू कैन चूज टू स्किप ऑल दीज थिंग्स। ओके, जीएसटीआर 1 की भी डेट जो है वो रिवाइज हुई थी। ओके, अप्रैल टू जून का जो जीएसटीआर 1 है उसकी डेट 30 अप्रैल तक के एक्सटेंड नहीं हुई थी, लेकिन लेटर ऑन इसका जो ड्यू डेट है वो भी एक्सटेंड हुआ था। ओके,
So you can update the latest due dates as per the latest position. So these are not going to be asked in the exams. ओके, ई वे बिल की भी वैलिडिटी एक्सटेंड हुई थी उस समय। ओके, बिकॉज ऑफ कोविड सब लॉकडाउन हो गया था तो मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड थी व्हीकल्स की, तो ई वे बिल की वैलिडिटी भी एक्सटेंड हुई थी। सो दीज आर द वेरियस चेंजेस। ब्रॉडली आपको बोलूँ तो जो रिटर्न्स वाला चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, इफेक्टिव है। एज इट इज आपके एग्जाम्स में वो लोग जी एस टी आर 3 के बारे में नहीं पूछने वाले, वो लोग जी एस टी आर 2A के बारे में नहीं पूछने वाले, वो लोग आपको एग्जाम्स में मैचिंग कंसेप्ट के बारे में नहीं पूछने वाले। सो देयर आर वेरियस प्रोविजंस व्हिच आर नॉट गोइंग टू बी टेस्टेड इन द एग्जाम इन एनी केस एज फार एज द रिटर्न चैप्टर इज कंसर्न। जो न्यू रिटर्न का मैकेनिज्म है वो अभी तक के लागू हुआ नहीं है। ओके, टुडे इट इज सितंबर 2020 व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो लेकिन आगे वो लागू होगा। ओके, इट विल बिकम इफेक्टिव एंड it will be definitely making things easier for the people, for the taxpayers. So basically these are all the changes related to payment chapter and returns chapter. मैंने आपको notes में finance act 2020 के भी कुछ changes बता दिया है, but then these are only given for knowledge purposes. These will not be applicable for your November 2020 exams. So friends, I will see you next time again with the part 3 of this series of GST amendments, जिसमें हम लोग आईटीसी चैप्टर में क्या-क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली 2-3 ही अमेंडमेंट्स हैं लेकिन उसको डिटेल में हम लोगों को पढ़ना होगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।